Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Faryal Behraman, third year MBBS student in Khyber Girls Medical College, and I'm serving as a co-head of career counseling domain from Muawine Ujala. Believe in yourself and anything is possible. So, today the topic of our session is fully funded scholarships for a bright future. इसके लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर खजरा बतूल मौजूद हैं। खजरा खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हैं और इसके साथ ही केजीएमसी मेडिकल सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान यूएस एलुमनाई की मेंबर हैं। Furthermore, Khadra went to University of California last year through sister to sister exchange program. ये तो एक फॉर्मल सा खजरा का इंट्रोडक्शन था। इसके साथ मैं बताती चलूं कि खजरा मेरी ही अपनी क्लास फेलो हैं और वो बहुत लविंग और बहुत काइंड हैं माशाल्लाह से। तो आइए जानते हैं खजरा से अपनी गेस्ट स्पीकर से S2S एक्सचेंज प्रोग्राम और डिफरेंट यूएस स्कॉलरशिप्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम खजरा। Walaikum assalam, Faryal. How are you doing? Thank you for having me and thank you for such a kind introduction. I'm doing good, alhamdulillah. I'm fine, alhamdulillah. Thank you so much for coming. I welcome you on behalf of my all team. Before starting our session, I want to do a small announcement. जैसे ही हमारा सेशन हो जाएगा, हम लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो उसका आंसर करेंगे। हमें जो जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा वो सर्टिफिकेट मिलेगा उसे। इसके अलावा जो मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा उसे हम ये मुआविन का जो की चेन है ये भी मिलेगा। और ये बहुत सा क्यूट सा पेन है, लेजर पेन, ये भी हम उनको देंगे। लेकिन ये उनको मिलेगा जो सेशन को पूरा देखेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो खजरा, why we all are here? What's the agenda of today's webinar? Kindly put some light on it. Okay, all right. We'll starting अभी अपने उसके साथ program के साथ officially. I'll first of all be going through my presentation and I'll be telling you the answer of your questions, right? So we will start accordingly. Okay, so first of all, the topic of my today's presentation or webinar is Scholarships Unplugged, Empowering Change Through Scholarships and Exchanges. The topic इसलिए मैंने ये चूज किया इसका नाम बिकॉज एम्पावरिंग चेंज इट्स बिकॉज के हम लोगों के यूथ को पता नहीं है कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारी जो स्टूडेंट्स है KPK के स्पेशली दे जस्ट don't know about it. So yeah, this is it. A brief introduction of me. As Faryal already mentioned, I am a sister to sister exchange program alumnus. I went back in 2022 to University of California. Apart from this, the question Faryal asked me, it was why are we here right now? Okay, तो हम यहाँ पे क्यों है इस टाइम पे? The viewers, everyone seeing us, हम यहाँ पे क्यों है? The question is that. Okay, so हम इसीलिए because I'll be telling you about uncountable scholarships. I'm just exaggerating it a bit, but yeah, uncountable scholarships. I'll be telling you about different UK based scholarships, United States ki, European countries ki, and the overall agenda is empowerment. जब हम लोग scholarships पे हमारे students जाएंगे foreign to study and all that, or they'll gain exposure, so this will lead to overall benefit of our country Pakistan, right? So that's why we're here right now, and inshallah it's going to be an amazing session with you all. Stay tuned, and over to you, Faryal. Mashallah, Khadra. I think this session is going to be so fruitful for everyone watching there. Inshallah. Okay. What will our audience take home after this, and what impact would this 30 minutes webinar put on all our amazing viewers? Okay,
So I'll be taking you through, like, I just added this map, like we are going to United Kingdom, United States, huh, through scholarships, of course, not physically. As you know, dollar bahut महंगा हो गया है. So yeah, you said what are we taking home after this, क्योंकि हर किसी को यही पड़ी हुई होती है ना कि उसने सीखना क्या है. यहाँ पे बैठ के हम अपने 30 मिनट लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या सीख के जाएंगे. So I'll be talking about these set of scholarships जो कि मेरी स्क्रीन पे इस वक्त आप लोग देख भी सकते हैं. Sister to Sister, Hertford Fellowship Program, SUSI UGrad जो कि बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं, Erasmus Mundus, not so common, और Shivning which is a UK based, and Fulbright. तो इन सब के बारे में I'll be giving you a general overview, and उसके बाद you guys can apply for them and of course get selected inshallah. And the next step is actionable step, practicality of course. तो इसमें I'll be telling you how to like go through the application procedures and how to crack the interview things. So yeah, this is it. Okay, Fazra. The next question we have is, what is our target audience right now, and what age group will get maximum benefits from our conversation? ओके, सो हमारे पास जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस हमारी जिसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा हमारी इस कॉन्वर्सेशन का, इट वुड बी बैचलर स्टूडेंट्स, इट वुड बी मास्टर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, और एज ग्रुप इट वुड बी 18 to 30. यू कैन डू इट मैक्सिमम 30 years of age. तो इंशाल्लाह दे विल बी affecting or they would be getting the most out of whole this conversation inshallah at the end of it. Inshallah, inshallah. Okay, Fazla, can you tell us about कि आपने ये जो S2S exchange program में कैसे apply किया, and what is application procedure and all the stuff about S2S exchange program? First of all, I just put this quote of Nietzsche in my, he's my favorite philosopher, German philosopher. I'm not a man, I'm dynamite. ठीक है. मैं ये इसलिए डाला क्योंकि आई जस्ट वांट यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल के एक मोटिवेशन मिले कि भाई हम लोग क्या, हमारे अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो नीचा जिसने भी उसको पढ़ा है वो यही है कि ही हैज चैलेंज्ड थॉट्स के हमारी आइडियोलॉजी चेंज कैसे हो सकती है, कैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, हम लोग एक इंसान के अंदर अल्लाह ने कितनी कुदरत रखी हुई है, कितनी डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस है थ्रू विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड. हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज इट. अब द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी इज व्हाट इज सिस्टर टू सिस्टर, एंड उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है. So as the name shows, sister to sister, and last year a lot of boys इसमें उन्होंने apply किया. Unfortunately it's not for boys, हाँ, but boys don't get disheartened. Inshallah as we go forward I'll be telling you all the scholarships जो कि inshallah लड़कों के लिए भी होगी. ठीक है. So first of all, what is sister to sister? Sister to sister जो है एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट का फॉर द अंडरग्रेड स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. वहाँ पे दे हैव दे स्टे 6 to 12 weeks. ठीक है. और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, यू हैव टू बी एज लिमिट ऑफ 18 to 25 years, यू शुड बी अ पाकिस्तानी फीमेल, नो प्रायर यूएस ट्रेवल. ठीक है. सो या दिस इज अबाउट सिस्टर टू सिस्टर. Now coming to your question, what is the application process? ठीक है. हम कैसे जो है sister to sister में apply कर सकते हैं, and then how can we get selected. ठीक है. Okay, so first of all you will get a call for applications. ठीक है. आपने जाके जो है अपनी एप्लीकेशन जो है उसको क्या कहते हैं फिल करना है. ठीक है. उसके बाद जो है एप्लीकेशन के अंदर यू विल हैव डिफरेंट स्टेप्स. ठीक है. यू हैव ऐसे क्वेश्चंस जिसमें जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत से लोग वहाँ पे मार खाते हैं, आप लोग प्लेजरिज्म करते हैं सारे. ठीक है. इधर उधर से उठा के चैट जीपीटी मुझे ज़रा बता दो इसका क्या जवाब है कि मैं उसको बता दूँ. ठीक है ना. सो दिस इज, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है. ठीक है. एप्लीकेशन प्रोसेस में, बिकॉज दे कैन ईजिली कैच प्लेजरिज्म एंड चीटिंग सारा कुछ. दूसरा ये कि आप ऑथेंटिक होंगे उसमें. सही है. I'll put light on it in detail afterwards कि एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए. सही है. आफ्टरवर्ड्स इसके बाद हम आते हैं इनिशियल इंटरव्यू में. इंटरव्यू बहुत इजी सा होता है. दे विल बी आस्किंग यू 3 से 4 सवाल अंग्रेजी में. ठीक है. आपकी अंग्रेजी जज करेंगे. सही है. नंबर 2 जो है
इट वुड बी लाइक आपकी पर्सनैलिटी देख रहे कि ये बंदा किस तरह का है, ठीक है ना। उसके बाद जब इनिशियल इंटरव्यू हो जाता है तो बड़ा इंतजार होता है लोगों के, भाई अब क्या होगा, सही है। आई वॉज इन लाइक BRT, जब मैं घर, आई डोंट नो, आई वॉज गोइंग टू डेंटिस्ट और समवेयर एल्स व्हेन आई गॉट दिस कॉल कि हेलो खिजरा, अस्सलाम वालेकुम, यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस, एंड आई वॉज लाइक ओ रियली सीरियसली, इज दैट अ प्रैंक कॉल, अच्छा खैर। फिर फाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें हमारे पास एक पैनलिस्ट्स का ग्रुप होता है। एक बंदा US एम्बेसी से होता है, एक बंदा हमारे पास जो है वो S2S से होता है, और एक बंदा जो है हमारे पास वो जो है क्या कहते हैं, वो होता है, क्या कहते हैं, एक और बंदा होता है, जस्ट फॉरगॉट, ठीक है। ओके, सो दे विल बी जजिंग योर पर्सनालिटी अगेन, इट वुड बी अ डिटेल्ड इंटरव्यू, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स होती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आपकी एक स्टोरी बना के सारी एप्लीकेशन को देख के, सारे इंटरव्यूज को देख के, एक आपकी जो है वो स्टोरी बना के वो सेंड करते टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और फिर वो यूनिवर्सिटीज आपको चूज करेंगी, सही है। सो इस तरह UC डेविस ने मुझे चूज किया। व्हेन आई वेंट देयर तो मुझे एक ऑफिशियल ने बोला कि हे, इज दैट यू हु कैन स्पीक 5 languages? I saw that in your CV. I was like, yes, I can speak now. So he was like, oh, impressive. So this is how application matters और वो कितना important है, सही है। So this is all about the application process. You guys don't worry, stay connected. इसके बारे में मैं बहुत सी valuable बातें जो है वो आगे मैंने ऐड की हुई है, so I'll be throwing some light on that too, inshallah. That's it, Faryal. Over to you. इंशाल्लाह। खजरा, वैसे आपने हमें ये नहीं बताया कि आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं, 3 साल हमारे साथ रहने के बाद भी। It's okay. I'll tell you. मैं तुम्हें सिखा भी दूंगी पर्शियन. It's okay. ओके, खजरा, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सप्रेस एक्सचेंज प्रोग्राम में, क्या जर्नी रही, और कोई भी मेमोरेबल या कोई फनी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें अपने व्यूवर्स के साथ। Okay, it was an amazing journey because जो खिजरा सिस्टर टू सिस्टर जाने से पहले थी वो खिजरा अब नहीं है, ठीक है। I have changed a lot and I just give the credit to S2S. Thanks a lot to Miss Mahveen if she's listening here. I don't know, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मुझे सुने बैठ के, but still it was an amazing journey. I just chose some pictures from my journey जिसमें I met a lot of people. You said कि stories बताओ, तो यार मजे की बात ये कि जो मीडिया दिखाता है दैट्स नॉट ऑलवेज द ट्रूथ। जब हम ट्रैवल करते हैं वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ना। आई सॉ मुझसे भी, हमारे पाकिस्तानियों से भी बेहतर मुसलमान अमेरिका में। इट वाज लाइक इफ यू सी दिस पिक्चर जिसपे मेरा कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है, इसमें दिस गर्ल इज फ्रॉम लाइक दिस इज अफ्रीकन अमेरिकन, एंड जब नमाज का टाइम हो शी वाज लाइक हे सिस इट्स टाइम फॉर प्रेयर्स, लेट्स गो। And I was like, oh wow, seriously, itni jaldi? So yeah, it's like that. And she told me, sis, you lead the salah. I was like, okay, sahi hai, matlab ठीक है। So yeah, this is it is। और इसके अलावा you asked me more about के कोई मजे की स्टोरी। वहाँ पे ये था कि बहुत से अफगान्स, I met a lot of Afghans, and I went to a shop and वहाँ पे there was this Afghan shopkeeper and he was selling chocolates. मुझे पता चला कि he's Afghan and I know Persian, ठीक है। So I started talking to him in Persian and he gave me free chocolates, हाँ। तो ये पर्क्स थे, कुछ बहुत मजे की चीज़ें थी। इसके अलावा एक और बात जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी इस सारे प्रोसेस में, ये कि मैं UC डेविस हेल्थ सेंटर गई थी एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ MBBS स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर ना। जब मैं उनके हॉस्पिटल्स गई, उनका सारा मॉर्निंग रेपो अटेंड किया कि वहाँ पे वार्ड्स कैसे होते हैं, क्लिनिकल्स कैसे होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे लाइंस बन के, लिटरली वहाँ पे रश बहुत कम था। मतलब हमारे हॉस्पिटल्स जो है यहाँ पे तो दे आर ओवर क्राउडेड एंड ऑल दैट, वहाँ पे रश बहुत कम था। तो या, एंड लास्टली एक और बड़े मजे की चीज़, उनके डाइनिंग कॉमन्स। खाना जो था वो मजे का तो नहीं था यार, देसी खाने की तो अलग बात होती है, लेकिन इट वाज लाइक जो वो था, क्या कहते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन पे वो फोकस करते हैं यार, मतलब अमेजिंग ना। यू हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइक इतना जो है हम लोग कार्ब्स लेने, इतने प्रोटीन्स लेने, इतने हमारे पास फ्रूट्स होने चाहिए, सो ऑल दैट। बाकी ये कि मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए हम मस्जिद भी गए थे, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल थ्रू आउट दैट, तो बहुत मजा आया, इट वाज अमेजिंग। खजरा, दिस वाज सो ब्यूटीफुल जर्नी। ये तो सुनने में भी अच्छा लगा, लेकिन जब मैं आपकी स्नैप्स देखती थी तब मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से एक्सप्रेस एक्सचेंज प्रोग्राम स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो गई हैं।
Mm-hmm. ये इतनी इतनी अच्छी जर्नी है कि मैं खुद भी इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, दिस होल जर्नी। Inshallah, more power to और you. और इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता होता। तो आज हम Yep. यहाँ पे इसीलिए हैं कि ताकि वो सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में, यूएस स्कॉलरशिप्स हैं, यूके स्कॉलरशिप्स हैं, आप उनको रिवील करें और इनको बताएं जरा कि ताकि ये भी इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकें। All right, फरियाल, इट्स ओके, आपने भी चले जाना है अमेरिका, मुझे पता है सब ने आखिर में अमेरिका भागना है। अच्छा जी, सो यू आस्क्ड मी अबाउट स्कॉलरशिप्स, सो गाइस आई विल बी टेकिंग यू थ्रू रोलर कोस्टर ऑफ स्कॉलरशिप्स, AKA स्कॉलरशिप सफारी, जो कि मैंने इसको नाम दिया बिकॉज a lot of you are unaware about that unfortunately। और KPK के स्टूडेंट्स जो है, स्ट्रेट अवे उनको पॉइंट आउट करूँ तो भाई तुम लोग लिटरली मिस आउट कर रहे हो बहुत सी चीज़ें, ठीक है। सो जस्ट सी देम, अप्लाई फॉर देम and go and gain exposure and सीख के वापस आओ पाकिस्तान के लिए, ठीक है। So yeah, we'll start with a roller coaster of scholarships. Sounds funny but still मजे का है। Okay, so first of all जिसको मुझे recently पता चला about the Herford Fellowship Program, ठीक है। ये जो है एज लिमिट, इस पे बेसिकली हमारे पास अंडर 30 जितने भी डेमोक्रेट्स है, एक्टिविस्ट्स है, हमारे पास जर्नलिस्ट्स है, हमारे पास एकेडमिक्स जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स है, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स है, जो कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो गए, सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हो गए, पॉलिटिकल साइंस, IR, ये सारे जो है एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तुम लोगों ने करना क्या, 3 से 4 महीने यू गाइज विल बी स्टेइंग इन द वॉशिंगटन DC, ठीक है। वहाँ पे यू विल क्या कहते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने रिसर्च करनी है, सही है। आपकी रिसर्च होगी ऑन डेमोक्रेसी रिलेटेड टॉपिक्स। इट्स फुली फंडेड। You will get a monthly stipend for the living expenses, आपके सारे travel costs, आपकी accommodation जितनी भी है, research facilities सारी, it's all covered under the head of Herford Fellowship Program. So of course इतना amazing है, so you guys should not miss it, ठीक है। उसके बाद when you क्या कहते हैं, when you go through the research process and सारा कुछ, then आप लोगों की पब्लिकेशंस होंगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, पब्लिक इवेंट्स, ओवरऑल ये प्रोग्राम इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो डोंट मिस दिस आउट। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों को अपना एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है, अपनी रेज्यूमे सबमिट करनी है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करना है, एंड उसके बाद यू विल गेट रिव्यूड बाय अ सिलेक्शन कमेटी एंड इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानीज हैव दिस पोटेंशियल। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि बहुत से लोग हैं उनको पता नहीं है, सिर्फ जब पता चल गया दे कैन डू अ लॉट ऑफ वंडर्स। सो या गो अहेड, ये था इसके बारे में। नंबर 2 इज अबाउट फुलब्राइट। फुलब्राइट के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है। फुलब्राइट जो है इट्स ऑल्सो अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर यू हैव completed your bachelor's degree, you have got that in hand, or you have completed your master's degree, so you can apply for Fulbright। इसमें आपको सिर्फ एक अंग्रेजी का टेस्ट देना है, आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो चेक होगी, GRE जिसको कहते हैं, वो टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में जाके मास्टर्स और PhD की डिग्री हासिल कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या दैट वाज अबाउट फुलब्राइट। एंड मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया चौके, सो या अगर इफ़ यू गाइज गेटिंग बोर्ड यू गाइज कैन कमेंट समथिंग या जो भी। Anyways, we have the last 2 scholarships, SUSI, SUSI, which is called, और UGRAD, ठीक है। इसके बारे में सबको पता है, दोनों अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके सब अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर देर वॉज दिस डॉक्टर अबीर, आई थिंक इंस्टाग्राम पे है कोई, शी वेंट ऑन SUSI एंड UGRAD पे बहुत से लोग जानते हैं। फरियाल, यू ऑल्सो नो दैट हमारे जो टीचर है डॉक्टर फरहान, ही ऑल्सो वेंट ऑन UGRAD। सो जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो MBBS स्टूडेंट्स है, आप लोग सारे भी जा सकते हैं, ठीक है। सो या दीज बोथ आर ऑल्सो फुली फंडेड स्कॉलरशिप, सो just don't miss them out, look for them, search about them, and आप लोग उसके बाद run through the procedure। खजरा, क्या आपकी प्रेजेंटेशन आप शो कर रही है स्क्रीन पे? yes, क्यों नजर नहीं आ रही? बट ये नजर नहीं आ रही। seriously? yes, you should have told me earlier, bro। it's okay। हम ऐसे ही कैरी कर सकते हैं अगर प्रेजेंटेशन ना भी नहीं हो। नहीं, it's okay, I have it, bro, it's okay, no worries। wait a sec।
यस खजरा, अब अब शो आ हो रही रही है। है? अब शो हो रही है। भाई मुझे पहले बताना था, इतने सारे लोग जो है बैठे हुए हमें सुन रहे हैं एंड वी आर लाइक अपने आपस में लगे हुए हैं। इट्स ओके, नो वरीज। ओके, ब्लेसिंग इन दिस गाइस। अच्छा जी, यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके खजरा, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ सी ऑफ स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा अगर आप यूके की स्कॉलरशिप्स या आपकी अपनी और कोई चॉइस की स्कॉलरशिप्स हों जिसको आप बताना चाहें, उसके ऊपर क्विक रिव्यू दे दें व्यूवर्स को, ताकि और भी अगर स्कॉलरशिप्स हैं तो एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको नहीं होता कि ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं है, तो प्लीज आप उन पे जरा लाइट डालें। ओके ओके, सो दिस वन इज फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, ठीक है। शिवनिंग स्कॉलरशिप बहुत अमेजिंग है, ठीक है। यूएस स्कॉलरशिप्स के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, बट यूके की स्कॉलरशिप्स के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड अनम, आई जस्ट टॉक टू हर अबाउट कि मैं ऐसे वेबिनार कर रही हूँ, एंड शी टोल्ड मी कि तुम्हें इसको भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिकली। सो शिवनिंग स्कॉलरशिप जो है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम में होती है, ठीक है। इट्स ऑल फुली फंडेड। इसमें जो है आप मास्टर्स की डिग्री के लिए जाएंगे वहाँ पे, सही हो गया। उसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे ये था कि हाउ कैन अ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट वो वर्क एक्सपीरियंस उसके पास हो सकता है। सो थैंक्स टू मरियम, मैंने अभी उससे कॉल पे बात की एंड शी वाज लाइक भाई मैंने तो प्रोजेक्ट कर लिया है, मैं तो यूके जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा सही है, बहुत पहले बताना था ना मुझे। सो या यू गाइस कैन इजीली हैव अ 2 years वर्क एक्सपीरियंस साथ में, उसके बाद आप आराम से शिवनिंग के लिए अप्लाई करें। से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है सिंपल सा है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। वैसे ही जिस तरह बाकी मैंने बताया एप्लीकेशन प्रोसेस डिफरेंट उसका, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। और इसमें आपके सारे एयर फेयर्स, रिटर्न टिकट्स वगैरह, ट्यूशन फीस, स्टाइपेंड्स वगैरह, इट ऑल गेट्स कवर्ड, ठीक है। सो या इट्स गुड, ये हो जाएगा शिवनिंग का, सही है। उसके बाद हम चलते हैं यूरोप की तरफ, सही है। हमने अमेरिका और यूके का सफर कर लिया, अब हम यूरोप की तरफ चलते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग जा नहीं सकते, बहुत महंगा है टिकट, लेकिन हम यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के थ्रू वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, सो वी हैव scholarships in UK. So as I was talking to an official of Moavin, तो उन्होंने भी मुझे Erasmus Mundus के बारे में बताया, जो कि अभी मेरी एक और फ्रेंड है वो भी जा रही है। She just recently got graduated from University of Government College Lahore, I'm sorry. तो she got a gold medal and अब वो मैम जा रही है यूरोप जा रही है, ठीक है। it's also simple, you should have a bachelor's degree। आपकी डिग्री नहीं भी है तो आपका एक होप सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो फुली फंडेड। अब मजे की बात जो आती है, हाउ टू क्रैक द स्कॉलरशिप, ठीक है। क्योंकि बता तो दिया स्कॉलरशिप्स के बारे में, सब कुछ हो गया। अब करना कैसे है, आप इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन ज्यादा है, एक अनार सो भी मार, हाँ वक्त का मुकाबला सख्त। सो हाउ कैन वी get into the thing, हाँ। so अब वो किस तरह का बंदा ढूंढ रहे होते हैं, सही है। पहली चीज एकेडमिक एक्सीलेंस, आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके जो जीपीएस है, आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माय बाबा एंड अम्मी के मेरे जो स्कोर थे मैट्रिक के, एफएससी के, सारे स्कोर्स मेरे लाइक आई वाज A+ स्टूडेंट थ्रू आउट, तो मुझे उसकी वजह से बहुत बेनिफिट मिला, ठीक है। एकेडमिक एक्सीलेंस। नंबर 2, लीडरशिप पोटेंशियल। आप जो है आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया है, आप लोग कितना जो है इंगेज होते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, आप लोग अपने इलाके में क्या कर रहे हैं। आर यू जस्ट स्लीपिंग और यू लुकिंग अराउंड योर एनवायरनमेंट एंड वांटिंग टू ब्रिंग चेंज इन दैट, सही है। तो दूसरी चीज लीडरशिप पोटेंशियल। तीसरी चीज आती है क्रॉस कल्चरल अडेप्टेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग होते हैं दे आर नॉट एबल टू सेटल इन अ न्यू इन्वायरमेंट। भाई ये तो ये है, ये तो ये है, इस तरह करके ना, कि ये तो ऑफ कोर्स जब हम नए इन्वायरमेंट में जाते हैं वी हैव टू गेट फ्लेक्सिबल, हम लोगों को थोड़ा डिफॉर्म होना होता है उस जगह पे सेटल होने के लिए। सो आप लोगों को क्रॉस कल्चरल अडेप्टेबिलिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। देन वी गेट इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, आप लोगों को सीखने का शौक होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे सीखना है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे नए नए लोगों से मिलना है, मुझे जो है लाइक
क्या कहते हैं एक्सपोजर गेन करना है और फिर मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने फेलो पाकिस्तानीज की बेनिफिट के लिए, ठीक है। उसके बाद वी हैव कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स फरियाल वी वोंट बी टॉकिंग राइट नाउ अगर हमारी लैंग्वेजेस सेम ना होती, सही है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स कमिटमेंट। आप वापस आ रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं। जब आप लोग जो है गए थे, आपने वादा किया था कि मैं वापस आके जो है ये करूँगा पाकिस्तान के लिए, तो आप अपने बिहाफ पे अपने उसमें कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं। सो इस तरह का बंदा वो ढूंढते हैं और ये बंदा वो जज कैसे करेंगे, इंटरव्यूज के थ्रू करेंगे। आपका जब इंटरव्यू होगा, 3-4 इंटरव्यूज आपके जब हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, आपके किस तरह के बंदे हैं, आपका अखलाक, आपका नेचर, एवरीथिंग। सो यू गेट जज फ्रॉम दैट एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओके आई जस्ट चोज द रॉन्ग वन, वेट अ सेक। फरियाल यू कैन कंटिन्यू विद समथिंग, या मुझे कुछ और ऑन करना है। यस, इंटरव्यूज की आपने बात की, तो हाउ टू क्रिएट दीज इंटरव्यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग फॉर? अच्छा वो मैंने अभी बता दिया सारा, जो यू सेड ना कि व्हाट टाइप ऑफ किस तरह के स्टूडेंट्स दे आर लुकिंग फॉर? एग्जैक्टली वही मैं बता रही हूँ कि वो किस तरह के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो मैंने बता दिया आपको। कैन यू सी माई स्क्रीन राइट नाउ फरियाल? जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपकी। कैन यू सी माई स्क्रीन राइट नाउ, इज इट फाइन? नहीं, हाँ अब शो हो रही है, अब शो हो रही है जी। ओके एक सेकेंड, इसको जूम करना है। We just got a it's okay. अच्छा जी, उसके बाद एक लास्ट चीज जो कि मैं बताना चाह रही थी, इट्स अबाउट कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होनी चाहिए। अब हमने सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर ली, देख लिया कि सब कुछ कैसे होता है, ऑल डैट। अब आपकी एप्लीकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे पहले यू शुड हैव टू रिसर्च। अब हमने सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की, गाइस गो एंड डू अ रिसर्च कि कौन सी स्कॉलरशिप आपके सब्जेक्ट को मैच करती है, आपके इंटरेस्ट्स को मैच करती है, आपकी डिग्री को मैच करती है, उसको चूज किया, नंबर 1। नंबर 2, हम जा रहे हैं रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वहां पे जाके पढ़े सब कुछ, सारा सीन क्या है, ठीक है। नंबर 3, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स, टेल देम कि आपने कितनी कम्युनिटी सर्विस की हुई है, आप लोगों ने कितना जो है क्या कहते हैं वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, आप लोग जो है डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट रहे हैं, ये सारा वो बहुत देख रहे होते हैं। अंग्रेज जो है ज्यादातर हमारी स्किल्स को देख रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम हमने कितने कागज भरे हुए, ठीक है। उसके बाद आया पर्सनलाइज योर एसेज। एसेज में जितना आप लोग उनसे कनेक्ट हो, अपनी रियल स्टोरीज बताए। एक क्वेश्चन था कि टेल एनी पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, जो कि एक स्टोरी के थ्रू। सो आई टोल्ड देम कि मुझे बीआरटी में एक औरत मिली एंड दिस इज हाउ वी गॉट अ कॉन्वर्सेशन टुगेदर, और हमने इस तरह से, तो वो आपकी पर्सनालिटी एक स्टोरी के थ्रू जज हो गई, सही है ना। तो एक ये बात आ गई। उसके बाद वी गेट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस आपके पास होनी चाहिए। आप अपने सीनियर्स के पास जाए जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आपके जो डॉक्टर्स है, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, दे विल गेट यू द रिकमेंडेशन लेटर्स। और आखिर में फिर ग्रामेटिकल एरर्स के लिए उसको प्रूफ रीड करें एंड ऑल दैट, ठीक है। सो या और that's all about the thing, and I just want to add something at the end, public service message, कि भाई इस वक्त I think 28 people are watching us, ठीक है। तो भाई 3 चीजें हैं जो कि मैंने कहा था मुझे कभी मौका मिले तो मैंने सबको बतानी है, सही है। द नंबर 1 इज काइंडली यार पानी वगैरह ज़ाया नहीं करना, सही है। जस्ट मेक अ प्लेज राइट नाउ कि आप लोगों ने पानी ज़ाया नहीं करना, इट्स जस्ट एंडिंग। हाँ, नंबर 2, प्लीज़ डोंट लिटर। हमारी कौम बहुत गंद मचाती है, एंड वेन एवर हमारी पार्टीज होती है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके बाद सब चले जाते हैं, जो नहीं घर जाता तो वो ये कचरा होता है जो पड़ा हुआ होता है। एंड नंबर 3 इज दैट काइंडली बी काइंड टू एवरीवन, you never know what other person is going through. So yeah, these 3 are the messages which I would be ending my presentation on. And if you guys have any questions, let me know in the comments. And yeah, एक और बात lastly, सबने देख लिया इन स्कॉलरशिप्स के बारे में, आप मजीद जो है जान सकते हैं at usefp.org/scholarships, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाके इसके बारे में मजीद कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल। Thank you so much, Fibra. Okay, let's move towards the audience question, what they are asking in the comments.
आई All थिंक right. उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसके बारे में मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू नेम द स्कॉलरशिप टाइटल अगेन? तो ये बता दूँ। अच्छा जी। अच्छा जी। एक ये है कि मैं स्कॉलरशिप्स को इसके कमेंट्स में मैं पिन भी कर दूंगी, सही है, मुआविन को बोल दूंगी कि वो पिन कर दे जितनी भी स्कॉलरशिप्स मैंने मेंशन की है यहाँ पे। मैंने हरफोर्ड फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था सबसे पहले सिस्टर टू सिस्टर, देन हरफोर्ड फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद वी गेट टू शिवनिंग, ठीक है, शिवनिंग जो कि यूके स्कॉलरशिप है, ठीक है। उसके बाद वी हैव द इरास्मस मंडस जो कि यूरोपियन कंट्रीज की स्कॉलरशिप है, एंड फुल ब्राइट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्कॉलरशिप है। सो या, आई जस्ट कवर्ड ऑल देम। Okay, the next question is, how can we go after MBBS? हाउ कैन वी गो आफ्टर एमबीबीएस? एमिलियर प्लैप कौन देगा? मैं दूंगी ना। अच्छा, एमबीबीएस के बाद कैसे जा सकते हैं? एमबीबीएस के दौरान जा सकते हैं। केजीएमसी स्टूडेंट्स अगर मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सो यू गाइस हैव गॉट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोलीडो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे यू गाइस कैन गो इलेक्टिव्स करने जा सकते हैं एमबीबीएस के दौरान। और एमबीबीएस के बाद एमबीबीएस वालों का कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो हमें जब एमएलई और प्लैब के बाद भी फैमिली मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन उठा के दे देते हैं, बिकॉज वो हम पे इतना ट्रस्ट नहीं करते अपने इंसानों को लेके। तो ये सीन है कि एमबीबीएस वाले बेचारे हैं थोड़े से ना, उन पे तरस आता है मुझे। Okay. Uh, the next question is, how can we approach supervisors? As in some scholarship, it's mentioned that we have to make a study plan, etc. सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। How can we approach supervisors? As in some scholarships, it's mentioned that we have to make a study plan, etc. अच्छा जी, आप अपने यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन आपको कोऑपरेटिव लोग बहुत कम मिलेंगे। हमारी अपनी, अभी मैं बोलना तो नहीं चाहिए, बट हमारी अपनी इंस्टीट्यूट में जो है बहुत से लोगों ने हर्डल्स क्रिएट किए मेरे बाद, जो सिस्टर टू सिस्टर पे जाना चाहते थे उन लोगों के लिए। सो आप लोगों को सपोर्टिव लोग यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे, बट स्टिल यू गाइज डोंट हैव टू लूज होप एंड स्टार्ट सर्चिंग, क्योंकि वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद, जो भी होता है कि इंसान जब कोशिश करता है तो अल्लाह रास्ते पैदा करता है। सो या, दिस इज हाउ। आप लोगों ने अपने सुपरवाइजर्स की बात आई, सो अपने यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो यू गाइस कैन लुक फॉर, अपने किसी एचओडी से बात करें, कोई ऐसा कोऑपरेटिव आपका टीचर है तो उनसे बात करें, उनके थ्रू उनके डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। सो इस तरह से रास्ते बन जाते हैं खुद ब खुद। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सना अयूब की तरफ से, मुझे ये बताएं कि मेरा अभी बस पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स हो गए हैं, but have not yet gotten my degree, so can I apply? And currently working अच्छा on जी। thesis. Okay, so she is a political science student. You can apply for Erasmus Mundus on a hope certificate, ठीक है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एक होप सर्टिफिकेट लेना है कि दिस स्टूडेंट विल पास द एग्जाम्स इंशाल्लाह, और ये हमारे पास इसकी वो है गारंटी कि ये जो है पास हो जाएगी। इरास्मस मंडस वालों को डिग्री नहीं चाहिए होती है बैचलर्स की, मतलब वो होप सर्टिफिकेट पे भी काम चल जाता है। यू कैन अप्लाई इन इरास्मस मंडस, और दूसरा यू कैन अप्लाई इन फुल ब्राइट आफ्टर यू गेट द डिग्री। पॉलिटिकल साइंस की जब डिग्री आ जाएगी ना, उसके बाद यू कैन अप्लाई इन फुल ब्राइट। Okay. Khizra, next question Shumaila Ali की तरफ से है, few days ago scholarship opened in South Korea Seoul National University, but in its eligibility criteria IELTS not mentioned. We came to know that it can be done after admission, so it is true? ये मुझे नहीं पता इस स्कॉलरशिप के बारे में, आई डोंट नो अबाउट इट, सो आई ऑलराइट, कांट बस कमेंट। यही क्वेश्चंस थे जो अभी तक कमेंट्स में आए हैं। ओके, ऑलराइट। तो क्या करें, बस अपना जो लास्ट हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन, वो स्टार्ट करें, हाँ, जिसमें आफ्टर जिसमें यू। ऑडियंस जिसमें ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा हमें आंसर करेगी, जो सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसमें, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा उसको दिस क्यूट लेजर पेन और मुआविन की तरफ से उसका की चेन भी मिलेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब पता चलता है कि हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने कितना इस सेशन को सीखा।
पहला क्वेश्चन है, which scholarship are you guys going to apply for? Which scholarship are you guys going to apply for? क्या करें, ये कमेंट्स में लिखते हैं क्वेश्चंस या बस ऐसे ही? Let's wait for the comments, huh? I'm just looking at the comments right now. ओके, हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। हजरा, ये आप है कि आप डिसाइड करेंगी कौन सा बेस्ट आंसर है? Seriously? तो मुझे Yes. इतनी अजीम जिम्मेदारी क्यों दे रही हो, हाँ? Okay, so yes, let's just give them more time, like 10 more seconds, huh? So Okay, okay. we can have a lot of people जिनमें हम decide करें. All right. Okay, so we got sister to sister. Very nice. Wait, just. Okay, so we got different comments. इनमें से we can go with Sana Ayub. हाँ, Sana Ayub के साथ चलते हैं. She mentioned Erasmus Mundus. Okay, ठीक हो गया। Yep. मैंने नोट कर दिया है इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, सो व्हाट टॉपिक विल यू गाइस सेलेक्ट? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, सो व्हाट टॉपिक विल यू गाइस सेलेक्ट? Faryal, जितनी देर में they are commenting, I would tell you which topic I would be choosing for research. Okay. I'm interested. You know what? I'm interested in precision oncology right now. That too in the treatment of colorectal cancers और उसकी because the future is all about क्या कहते हैं जेनेटिक्स ना, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं अगर इफ़ दे आर लाइक जिनके सिबलिंग्स है, सो आई वुड सजेस्ट देम कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड मेरी कज़न को मैंने यही बताया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में जाओ, एंड शी वाज लाइक स्कोप नहीं है। सो गाइज, स्कोप नहीं होता हर चीज़ का, हर चीज़ में जब काबिलियत इंसान की होती है ना तो रास्ते खुद बन जाते हैं। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, थिंक बिगर। हजरा, जब तक हमारे पास आंसर्स आते हैं हम इनके एक दो क्वेश्चन है हमारे पास, उनको आंसर कर देते हैं। हाउ टू गेट स्कॉलरशिप फॉर प्लैग और यूएसए मिली, ये दो लोगों का क्वेश्चन है। इतना जबरदस्त सवाल है यार, मतलब प्लैब और यूएसएमएल के लिए स्कॉलरशिप्स हमें वो क्यों देंगे, जरा मुझे बताओ। वैसे ऑडियंस पूछ रही है तो हो सकता है कोई अगर स्कॉलरशिप। अगर 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 मुझे प्लैब और यूएसएमएल की स्कॉलरशिप्स मिलनी होती तो अभी फरियाल और मैं तो बाहर के मुल्क से बैठ के वेबिनार कर रहे होते। हाँ, तो ठीक है, इट मींस के ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं है। नहीं, देयर इज नो स्कॉलरशिप। यू हैव टू टेक एमएलई पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 इतना वो नहीं होता, पार्ट 2। ठीक है, जो हमारे पास आंसर्स आए हैं उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अलावा ऑटिज्म है, पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल इकोनॉमी, गुड, और डायबिटीज। वेरी नाइस। तो choose the best one. फरियाल, यू कैन चूज द बेस्ट वन। आई थिंक इसमें जो हमारे पास वो था, क्या कहते हैं, एक बीच में ऑटिज्म था, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हम तो डायबिटीज और ऑटिज्म इस टाइप के टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, लाइक पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटिकल इकोनॉमी तो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर भी आया है हमारे पास एक ऑप्शन। you can choose whatever you want, huh? Because it's not visible on my screen right now, so you have the authority, Faryal. Go with it. आई थिंक ऑटिज्म। It's good. ऑटिज्म। सैयदा हुमामा ने रिप्लाई किया है। अच्छा, कशफ का कमेंट है, हाउ टू सेलेक्ट टॉपिक फॉर रिसर्च।
अगर आप मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं सो यू कैन गो विद द रीसेंट हॉट टॉपिक्स, जैसे कि हमारे पास अभी प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, बहुत इस ट्रेंडिंग में है, ठीक है, कि आजकल फ्यूचर की जो स्टडीज़ है कि फ्यूचर में हमारे पास ड्रग्स को रिप्लेस करेगी जेनेटिक्स। हाँ, तो ये जिस तरह के टॉपिक्स हमें फ्यूचर में ज़रूरत होगी उनकी उनके ऊपर रिसर्च को ज़्यादा हम फोकस करें तो इट वुड बी वेरी गुड। हाँ, और जो या दैट्स इट फॉर द, बिकॉज कश्यप को हमारा पता है वो एमबीबीएस स्टूडेंट है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, शीमा खान कह रही हैं प्लीज रीड माय आंसर, दैट इज incidence of reproductive disorders like AIDS in Pakistan as it's increasing gradually. Exactly. That's such a क्या कहते हैं, that's such an interesting topic कि why it's increasing, and I just read an article about it कि इस्लामाबाद में HIV जो है उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और Mhm. उसका जो है सेहरा किसी और चीज़ के ऊपर भी जाता है, विच इज़ अ बिट कंट्रोवर्शियल, एंड वी आर पीपल आर सेलिब्रेटिंग प्राइड मंथ इन द वेस्ट, तो सारा थोड़ा बहुत वो भी है। इट्स ओके बट द टॉपिक इज़ वेरी गुड। All right. Fazra, next question हमारे पास आया है. Tell us about volunteer jobs one can do like NGOs based on so that we can put them in our CV. अच्छा, वॉलंटियर बेस्ड Volunteer जॉब्स हमारे job. पास जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मुआविन खुद से वॉलंटियर हमारे पास, तो यू आल्सो वर्क फॉर मुआविन, राइट? तो इस तरह की Exactly. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि हमारे पास हमें वॉलंटियर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस में सोसाइटीज़ होती है, आई माई सेल्फ जनरल सेक्रेटरी एट मेडिकल सोसाइटी के GMC, तो उसमें जितने भी हम वॉलंटियर काम करते हैं वो हमें वो हमारे जो है अप्रूव होते हैं, उनको माना जाता है, सही है। इसके अलावा हमारे पास हिलाल अहमर हो गया, रेड क्रीसेंट वगैरह, वहाँ पे हम वॉलंटियर काम कर सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर नोइंग मोर अबाउट एवरीथिंग, कोई भी चीज़। Okay, Fazra, last question इनसे पूछते हैं about how many scholarships they get today from today's session. Yeah, it's a good question, and एक और बात, जब तक the people are answering this, I would एक और बात ये कि the session is being recorded and it will be uploaded on Muavin's page and also on Facebook page of Dr. Hamza, inshallah. Sorry, YouTube channel of Dr. Hamza. So you guys can view that again वहाँ पे if you have any queries या कोई unsorted चीजें रह गई है बीच में, so you can check that out. फजरा, नेक्स्ट जो हमारे पास रिसर्च टॉपिक पे आया है, आई हैव लेजी बोन्स का, आई हैव चूज दिस टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स इन क्लिनिकल स्किल्स ऑफ मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. Exactly. हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पश्तो नहीं आती और पेशावर में आपको पता है कि बहुत लैंग्वेज बैरियर है. Exactly, तो that's an amazing. ये पता है, you know what? I was reading somewhere कि 75% role होता है language का in taking history. So this is where you stand when you lack knowledge of a particular language. तो इसलिए languages जो है वो बहुत important है. And if you are not good at a certain language, you can use an interpreter. लेकिन उससे बेहतर है कि आप ऐसी जगह choose करें जहाँ पे आपकी language जो है उसमें barrier नहीं आता. ठीक हो गया. हमारे लास्ट क्वेश्चन का अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो क्या करें फिर? Sad. दोबारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं. Oh, all right. ओके, द या क्वेश्चन सैयदा हुमामा ने स्कॉलरशिप रिप्लाई किया है इसमें कि 5 स्कॉलरशिप्स मेंशन की मैंने इसमें. रिजवाना नूर हैज कमेंटेड 5 to 6 एंड शीमा खान अराउंड 4. सो मुझे खुद भी नहीं पता मैंने कितनी स्कॉलरशिप्स मेंशन की है. फरियाल तुम काउंट करके बता दो. आई थिंक आई मेंशनड इरास्मस मेंडल 5 to 6. या 5 to 6. वेट अ सेक, इधर किसी का था 5 to 6. रिजवाना नूर, या तुम रिजवाना नूर को कंसीडर कर सकती हो फॉर द. All right. Okay, the next question is who will tell us about S2S exchange program? क्या इन्होंने ऑडियंस में क्या सीखा? क्योंकि मेन टॉपिक ही हमारा आज S2S exchange program पे था, तो कोई अगर एक भी इसका आंसर करता है तो उसको मुआविन की तरफ से की चेन या पेन मिलेगा. This will be the last question of our session. फरियाल में आंसर मुझे
जी सॉरी खजरा, मैंने नहीं सुना आपको। आई सेड मैं आंसर, मुझे टीचर मिला। आपको हम ऐसे ही दे देंगे, अभी हम ऑडियंस को मौका देते हैं, उन्होंने क्या सीखा। वरीज, तुमसे मैं कॉलेज मिलूंगी, सबर करो। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि अगर कोई बता देता है तो बेस्ट हो जाएगा। या लेट्स सी। ओह, फातिमा रिजवान इज वाचिंग। हाँ, हमारी वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल सोसाइटी की हमें टाइम दे रही है आज। फातिमा रिजवान भी आंसर कर सकती हैं अगर उन्होंने सेशन सुना है सारा। फातिमा रिजवान तुम्हें आंसर नहीं, तुम्हें पूरा पैराग्राफ लिख के देगी। Lazy Bones has commented that she learned the method of application in detail. Thank you. My pleasure कि मैं किसी के काम आई, अल्लाह का शुक्र है। ओके खजरा, सना अयूब ने रिप्लाई किया है, सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम इज मेनली फॉर पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट टू परस्यू एजुकेशन इन यूएस। Exactly. इसका मकसद है प्रोग्राम एक्सप्लोर होता है, to go there to meet a lot of people in का वर्ल्ड जो है वो खुलता है। you think दुनिया बहुत बड़ी है, उसके बाद you have a lot of new content होती है और फिर you can bring change through it. तो हो रहा है। खजरा आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अब आ रही है? अब ठीक है। Okay. So yeah, I just told it. Sun has correct. So you sit for 10. खजरा हमारे पास नेक्स्ट आया है आंसर, इट्स अ यूएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम only for girls for like 4 months that includes conference, workshops and presentations. Also we develop multiple skills through it like intellectual abilities, leadership, etc. This answer is better, huh? This is better. तो हम किसके आंसर को कंसिडर कर सकते हैं, शीमा खान या सना? So yeah, जैसे को बेहतर कि आप consider करें। it's up to you. I think the second answer is more detailed, so you can go with that. शीमा खान, okay, all right. I think हमें सेशन को अब एंड करना चाहिए। Exactly. Thank you so can much, Sidra. Thank you so much for joining us, and thank you for giving your precious time. We are Thank you so much. thankful for having you on this Swavin platform. Thank you so much to Mohan for giving me the opportunity to interact with a lot of people. जिनसे कब से करना चाहती needed a platform, मुझे जगह चाहिए थी जहाँ मैं अपना जो अपने thoughts और अपने idea convey कर सकती। You thank you so much for this opportunity. Thank you every single person who joined us. Thank you so much, Khadra, once again for joining us. No worries, pleasure. Okay.